Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I am discussing about the C++ loops. Okay, I have already told you that what are loops and how we can use them. Here is some more explanation of loops. Okay, loop is a statement or technique with the help of which we can execute a statement or a group of statement repeated number of times. Sometimes we need to print a statement, or we want to compute some value some number of times. So in this case we need to use a loop. ठीक है, हमें ज़रूरत होती है कि हम एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट करें. सो वी कैन डू इट बाय यूजिंग द लूप. ठीक, यानी कोई लाइन ऑफ कोड होता है तो हम चाहते हैं कि कोई 10 टाइम एग्जीक्यूट हो, 20 टाइम एग्जीक्यूट हो. एट दैट टाइम उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं. C++ में हम 3 टाइप्स की लूप्स यूज़ कर सकते हैं. वन इज़ फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. फॉर लूप उस केस में हम यूज़ करते हैं व्हेन वी नो इन एडवांस कि हमें एक स्टेटमेंट को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है. सपोज़ आप एक मैसेज जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं. नाउ यू नो दैट आप इस मैसेज को 10 दफ़ा प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए यू शुड यूज़ अ फॉर लूप. Sometimes we don't know that how many times we will execute a statement or a group of statement. The execution of a statement is dependent on condition true or false. So in that case we use while loop or do while loop. Now let's see. So every loop when we are going to use it, we can use it by using 3 ways. Every loop will have a starting point, ending point and sequence of moving. यानी हर लूप जो है उसके लिए 3 बातें होंगी. ठीक है, 3 कंडीशंस होंगे या 3 स्टेप्स होंगे जो एवरी लूप के लिए हम लेंगे. वन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. मीन्स एवरी लूप जो है उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है. एवरी लूप विल हैव एन एंडिंग पॉइंट and every loop will have a sequence of moving. Means के for the first time we have taken start from 1. Now second iteration is second, third iteration is third. This is the sequence of moving. Okay, now let us have a look on while loop first. Okay, while loop is a conditional loop. It is a conditional loop or conditional loop because when we use this loop we will have a condition. If the condition is true, loop will execute. If the condition is false, loop will not execute. Right, every time when we start we can take start from some value, and then depending on the condition, that if the condition true, the second iteration of the loop will done. If the condition is false, second iteration we cannot go on further. मतलब ये जब आपके पास पहली दफ़ा कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी. नहीं अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी. ठीक है, so we can say that the while loop checks whether the test expression is true or not. If it is true, code inside the body of the while loop is executed. That is, code inside the braces are executed. Then again the expression is tested, right? If the condition is true or not. Okay, so this process continue until the test expression becomes false, right? Okay, now we are having we want to know that when we should use a while loop. Okay, so when we do not know about how many times loops will perform some iterations, we need to use while loop. यानी while loop हम उस सिचुएशन में
यूज़ करते हैं जहाँ हमें पता नहीं होता है कि भाई ये स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हम कितनी नंबर ऑफ टाइम जो है एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट इट, हेयर इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ द वाइल लूप। हम जब वाइल लूप को डिक्लेयर करेंगे तो we will have the reserved word while, and then within the parenthesis there is a test condition, and then within the braces this is a block of code। यानी while reserved word होगा, parenthesis में test condition होगा, ठीक है। हम कोई condition रखेंगे और जो ब्रेसेस है उसमें हमारी बॉडी होगी यानी ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ठीक है। ओके, नाउ look at it, I mean test the condition। अब टेस्ट कंडीशन जो है ये फॉल भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगा तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। हर दफ़ा वाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट कंडीशन कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे तो बॉडी यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा। सो दिस इज़ अगेन हमने अभी यही डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा मज़ीद देख लें कि बॉडी ऑफ द लूप will execute if the test condition is true। You can see the diagram कि every time a condition is test। okay, if the condition is false, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स होगा तो हम बॉडी से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। So this was all about the while loop। Now here you can see the test condition must be enclosed in parenthesis। while के बाद parenthesis जो है वो must है। टेस्ट कंडीशन में आपने parenthesis को लाजमी इनक्लोज करना है, ठीक है। और जो द ब्लॉक ऑफ कोड है इसको हम बॉडी कहेंगे, और बॉडी जो है इट मस्ट बी इनक्लोज्ड इन द ब्रेसेस। अगर एक स्टेटमेंट होता है तो फिर हमारे पास इन ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होता है, बट इफ़ अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो देन वी नीड टू इनक्लोज इट इन अ ब्रेसेस। ओके, नाउ हियर इज़ लुक एट द फ्लो चार्ट, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट देख लें। We will take start from the green point that shows the start of the loop। condition is represented by the diamond symbol, ठीक है। now if this condition is true तो नेक्स्ट जो बॉडी है हम बॉडी को एग्जीक्यूट कर लेंगे। जो स्क्वायर में रेक्टेंगुलर शेप में बॉडी को रिप्रेजेंट किया गया है और डायमंड सिंबल में कंडीशन को रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज़ द फ्लो चार्ट। अब अगर लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। एवरी टाइम कंडीशन ट्रू होगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगी और लूप अपडेट होगा। अब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम लूप की बॉडी से निकल आते हैं, ठीक है, और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ आफ्टर द लूप स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? Now here look at a sample example। IOStream is the header file, and here we have included with a hash include director। okay, now main में अगर आप देख सकते हैं we have declared a variable n is 1, ठीक है। हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ऑफ टाइप इंटीजर and we have been initialize it with a value 1। now n is compared with 10, n is less than or equal to 10। now this is the test condition। every time when we will execute the loop the value of n is check against 10, ठीक है। when 1 की जो n की जो वैल्यू है उसको हर दफ़ा चेक किया जाएगा, 10 के साथ कंपेयर किया जाएगा। now in this case 1 is less than 10 true, तो हमें जो सी आउट n है ये क्या देगा, इट विल जनरेट द
output the value of n on the output screen. नेक्स्ट लाइन में n इज इक्वल टू n+1, इसको n को इंक्रीमेंट किया गया है ना। अब सेकेंड टाइम लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो n की वैल्यू 2 होगी ना। फिर 2 को कंपेयर किया जाएगा विथ 10। नाउ 2 इज़ अगेन लेस देन 10, सो इट इज़ ट्रू। तो आपके पास n की वैल्यू जो है फिर डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन में, क्योंकि बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। n की वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी, 3 बन जाएगी। ना एवरी टाइम n की वैल्यू डिस्प्ले होगी और अपडेट होगी। एवरी टाइम n की वैल्यू डिस्प्ले और अपडेट होगी until we reach to the value of n is 10. 10 is less than 10, no, it is equal to 10, still the condition is true। तो आपको n की वैल्यू 10 भी डिस्प्ले हो जाएगी। But when n becomes 11, now in this time 11 is not less than 10, neither it is equal to 10, so the condition is false। So whatever the statements inside the while body are, they will not execute। Okay, now here you can see explanation. Starting point of our this loop of this while loop is n is equal to 1, and within the parenthesis we are having a test condition, and this is also ending point of the loop, क्योंकि हर टाइम जब इसको चेक किया जाएगा तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस एक्ट एज द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लूप। ठीक है, और टास्क जो है ये लूप क्या कर रहा है, इट इज़ प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ n, एंड सीक्वेंस ऑफ वाइल लूप जो है इट इज़ इंक्रीमेंटिंग n बाय 1 ईच टाइम। सो एवरी लूप हमने कहा था कि उसमें 3 बातें होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड द सीक्वेंस ऑफ वाइल लूप, राइट। सो इसमें अपडेट किया जा रहा है इनको हर दफ़ा बाय 1, और हर दफ़ा आइटरेट होने के साथ जो है इनकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और कंडीशन को अगेन टेस्ट किया जाता है। So this is how the while loop works. Now look at the output of the program. We have 1 2 3 4 up to 10। ठीक है, so this is the sample output of this program। I hope आपको while loop की समझ आ गई होगी।